सिटी ऑफ डेस्टिनी के नाम से मशहूर आंध्र प्रदेश के सबसे बड़े शहर विशाखापत्तनम में इंडियन नेवी दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराने और चीन की घेराबंदी करने के लिए अब विश्व विजय अभियान की शुरुआत कर रही है। 19 से 27 फरवरी तक मिलन अभ्यास का 12वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। इसमें 51 देश भाग लेंगे जो अपनी परिचालन इकाइयों और प्रतिनिधि मंडल भेज रहे हैं। सबसे बड़े समुद्री अभ्यासों में से एक मिलन 2024 भारतीय नौसेना द्वारा दुनिया भर के मित्र देशों को एक साथ लाने का एक प्रमुख प्रयास है। इसके बारे में डिप्टी नेवी चीफ और वाइस एडमिरल तरुण सोबती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तार से जानकारी दी। मिलन 2024 का जी सोच ये है कि हमने 1995 में ये मिलन सीरीज एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी, जिसमें हम कुछ देशों को हमने बुलाया था क्योंकि हमें लगा था कि कोलैबोरेशन होना चाहिए, और ये उस जमाने में पोर्ट ब्लेयर में स्टार्ट हुई थी। जैसे हमारी लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी बढ़ती गई, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव सागर का सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ये जब आया तो बढ़ते बढ़ते ये एक्सरसाइज काफी बड़ी हो गई है, और हमने डिसाइड किया कि अभी पोर्ट ब्लेयर थोड़ा छोटा पड़ रहा था, तो हमने मेनलैंड में ये एक्सरसाइज शिफ्ट करी, और 2022 से विशाखापट्टनम में ये एक्सरसाइज चल रही है। और विशाखापट्टनम में इस साल का जो एक्सरसाइज होगी वो दूसरी एक्सरसाइज होगी। इसका इरादा ये है कि जो जितने मैरीटाइम चैलेंजेस हम फेस करते हैं, हम अकेले नहीं फेस करते हैं। इसमें कई देश हैं जो कॉमन मैरीटाइम चैलेंजेस फेस करते हैं, और ये मैरीटाइम सिक्योरिटी जो हमारी रिस्पांसिबिलिटी है वो हम अकेले नहीं निभा सकते। तो हम चाहते हैं कि किसी भी देश की नेवी अकेली नहीं कर सकती है। तो जो कोलैबोरेशन हम करेंगे, जो कॉमराडरी हम बिल्डअप करेंगे, जो कोहेजन होगा, ये है एम मिलन एक्सरसाइजेज का, ताकि हम सब मिलकर बैठें और कैसे चैलेंजेस फेस करने हैं और कैसे हमें सीखना है एक दूसरे के साथ ऑपरेट करना। एक प्लेटफॉर्म हम देना चाहते हैं खुद को और बाकी सारे देशों को जो हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। पर्टिकुलर फोकस एरिया will remain, of course, the International Maritime Seminar, in which we will invite various people to contribute with their thoughts under various subjects. So that is one big event which the Honorable Vice President will be presiding over, and of course the Honorable Raksha Mantri will also be there to inaugurate the Milan on 21st. So besides the International Maritime Seminar, which discusses maritime threats and maritime challenges, we will have for junior officers a lot of interaction, which is at the practical working level, in which they will have subject matter exchange and the experts will exchange their thoughts. Besides that, of course, are the seagoing exercises, and it's important that we exercise together at sea, learn how to operate with each other in large numbers and large groups, and learn how to communicate with each other at sea. So these are the basic focuses of the. Sir, will also include the current total how many geopolitical Navy situations, sir? I'm sorry? This will also include the current geopolitical situations that may affect. We will be discussing certainly the current geopolitical situation and the maritime challenges that arise from these, because it is the main topic of consideration for this year. And this will be exercised in discussions as well as through tabletop exercises that we will have with the participating navies. Sir, China or Pakistan. Sir, I'll request you let the others also ask. Sir, in total, how many Navy chiefs or heads of navies will be participating, and will there be a symposium of the Navy chiefs also? Yes, so this year we have 11 heads of maritime agencies which are participating as part of the Milan series, and we will engage with them, of course, through the participation of the International Maritime Exhibition, which I talked about. But besides that, also there will be bilateral dialogues between our naval chief and the heads of these maritime agencies, and we will be able to have dialogues or bilateral discussions with the other head of delegations also, between senior officers of the Indian Navy as well as the heads of delegations.
सर, जिस तरीके से चाइना फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का वीजा इस्तेमाल कर रहा है, आपको लगता है कि एक मैसेजिंग है सब ऐसे कंट्रीज जो एक साथ मिलकर उस जगह पे विशाखापट्टनम की तरफ ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्या ये एक मैसेज भी है स्पेशली चाइनीज को? आप अगर देखेंगे तो 51 देश हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इन 51 देश में हर देश का अपना अपना रिलेशनशिप है चाइना के साथ। तो मैं ये साफ करना चाहूंगा कि ये अगेंस्ट चाइना कोई मैसेज नहीं है हमारा मैसेज ये है कि हमारे जो चैलेंजेस हैं एट सी वो हम फेस कर सकते हैं अगर हम मिलकर काम करें, और इसीलिए हम एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं देशों को कि वो आए और हमारे साथ मिलें और कैसे पार्टिसिपेट करना है, क्या चैलेंजेस हैं वो डिस्कस करें और एट सी एक्सरसाइज करें। सो उस हिसाब से मेरा मानना है कि 51 कंट्री में हर देश जो है जो अपने अपना जो रिलेशनशिप लगता है किसी दूसरे या तीसरे देश के साथ, वो इस एक्सरसाइज में हमारा तो कोई इरादा नहीं है लाना। आपको बता दें कि चीन पर नजर रखते हुए 50 नौसेनाओं का एक दस्ता रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बंगाल की खाड़ी में जुटेगा, जो क्षेत्र में चीन की आक्रामकता को मुंहतोड़ जवाब देगा, जिसका मकसद एक सुरक्षित और स्थिर इंडो पैसिफिक सुनिश्चित करने का एक चेतावनी संदेश होगा। भारतीय नौसेना के जुड़वा एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत और विदेशी पनडुब्बियां इस सैन्य अभ्यास के सितारे होंगे, जिनका मकसद साफ शब्दों में यह होगा कि समुद्री स्वतंत्रता और शांति को बिगाड़ने की कोशिश चीन हरगिज न करे। गौरतलब है कि भारत अपनी ओर से दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ रहा है और क्वाड देशों के साथ भी इसका जुड़ाव काफी बढ़ गया है। बताते चले कि मिलन अभ्यास हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की समुद्री श्रेष्ठता को दिखाने और उसकी समुद्री सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज की दुनिया ऐसी हो गई है जहां समुद्री सुरक्षा सर्वोपरि है, इसीलिए समुद्री वातावरण को और सुरक्षित बनाने के लिहाज से भारत का मिलन अभ्यास एक आकर्षक मंच बन गया है। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक वक्त से पहुंच पाएं।